Just before the exam, your mother passed away. So, what strength makes you continue your preparation? हमेशा से this is what my mother wanted. I did start studying 2-3 days after my mother's passing away. और मम्मा की एक फोटो के साथ I used to sit and study. Hello everyone, myself Dr. Sagar Pushp. So today we have Dr. Subhashini Jain, a dedicated medical student who, despite facing immense challenges, never gave up on her dreams. From losing her mother to taking a 2-year drop, she encountered doubt and discouragement from others. She not only overcome these obstacles but also secured a spot in MD Psychiatry at her own MBBS college, that is Lady Hardinge Medical College. Hello, Dr. Subhashini. Thanks for joining us and congratulations on your psychiatry seat. How are you? I'm good, sir. Thank you for your appreciation. Thank you for giving me this opportunity to come here and talk and share my experience. So your journey has nothing sort of the courageous one, like you have faced challenges that could break anyone, but yet you have stood tall. So what inspired you to choose psychiatry? Was there any personal connection to this branch? Well, I feel I have been inclined towards psychiatry since the beginning. I have been very intrigued about how different people respond to a similar situation in different ways. How a same situation can make different behavior patterns in different people, and how emotional maturity or emotional intelligence can improve somebody's quality of life. How you react to situations change the stream of your life. That has really changed my life in a lot of way. And then I developed this interest in psychiatry throughout my undergraduation, then during my internship, when you go for clinical rounds and you see patients and you see how the life in that branch is. And then finally, I really decided to choose this branch. The personal connection which you're talking about is when I saw my mother. She was an epitome of strength, I feel. So when she was dealing with a terminal illness, but the kind of optimism, the kind of strength, the kind of emotional maturity she had is the reason why I'm sitting here and talking to you. And I've cleared and I've got a branch that I dreamed of in a college that I dreamed of. Had it not been for her, I wouldn't have had that strength that I have right now, achieved like till now. So many people have this stigma behind the psychiatry branch selection. So how did you approach your PG branch selection? Sir, I had a inclination and towards the branch since beginning, but yeah, you're correct, because this is not a typical doctor kind of a branch where people say there's not a lot of money coming in. Then there is this stigma of being like paglo ka doctor, and then people look at them also very differently. So yeah, all of these myths or all of these doubts I also had, because choosing a branch, I may emotionally feel inclined towards a branch, or I may like a branch, but choosing a branch it has to be a very objective decision, a very well informed decision that you make in your life. So then I researched into the branch. I talked to people who were in the branch, who had been psychiatrists for long, consultants, and every stage of the journey which we go through after choosing a branch, which is being a junior resident, then a senior resident, and a consultant, having a life in a public sector and a private sector. What's the difference between the kind of patients you'll have to deal in different scenarios? In fact, having a life in India and abroad is also got into, and I got to know the feedbacks. Then I matched those things with the skill set that I have, whether I'll be able to deal with the pressures of the branch. Will I be able to handle this kind of situations, because that also comes along with the branch. And the more I talked to the people in the branch, I realized that they're very, just like any other branch, people are very easily able to segregate their professional and personal thoughts. It does not affect you if you're strong enough and you've been trained correctly, which I hope I will be. So that I think that is when I decided that I have to choose this branch. Personally, yes, of course, I would feel extremely satisfied as a person
to help someone have a healthier, mentally healthier life, and to improve their quality of life, have a more fulfilling life, which I think these days is lacking in our branch and in society in general. I think mental health is a issue. It is the new pandemic that is there in world. So I think scope of branch is very well Yeah, then covered. again, congratulations to you that you have taken the role of Salakar at the Salah Sorts. So I just want to know that is there any personal connection behind this? Yeah, thank you, sir, of the to give me this opportunity to be a salakar at your platform. And yes, of course, I feel that a like mentor's role in any journey, in any goal that you set, a mentor's role is a pivotal role. If that is given to somebody who is very good, that can accelerate your growth immensely, I feel. So I have been around mentors since my childhood. My father is also a table tennis player, but he chose कि हमें एक कोच मिले. एक मैम थी हमारी. Both me and my sister play table tennis. My father also plays. So he made sure कि क्योंकि उसमें ना बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होते हैं, एंड देयर इज समबडी जो आपकी गलतियां समझता है और उसको बेस्ट तरह से सबसे जल्दी ठीक करने का आपको ट्रिक दे सकता है, जो मैं शायद बहुत गलतियों के बाद सीख पाऊं, समझ पाऊं कि अच्छा ये ऐसे गलत हुआ. तो छोटे में आई हैड अ टेबल टेनिस कोच. देन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूजी, तो यूजी में इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज स्टडिंग, दे मेड श्योर दैट फॉर मेंटल वेलबींग एंड द इमोशनल सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द academic academic guidance, there are teachers. So every teacher in that institute was allotted like 5-6 students, and weekly or once in a month these teachers used to connect with us. We could connect with them. हमारे numbers share होते थे और हम उनसे कनेक्ट कर सकते थे कि सर ये दिक्कत हो रही है, ये हॉस्टल में प्रॉब्लम है. या तब तो बहुत छोटे, इन कोटा एंड इट वाज वेरी, आई वाज वेरी यंग देन. तो तब तो और मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है. यूजी में हमारे पास सीनियर्स होते हैं. हमारी ब्रांच का वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग इन मेडिसिन इज कि आपके सीनियर्स ही आपको सब सिखाते हैं. तो वहां पे भी मेंटर्स के बहुत रोल आ जाता है. And finally, personally, in PG, when I came back to Delhi, I really needed somebody to talk to regarding my like preparation. तो मतलब ऐसा कुछ तुम्हारे जर्नी में ऐसा रहा जिसने मतलब एज ए मेंटोर तुम्हारे अभी तक के जर्नी में बहुत इन्फ्लुएंस किया हो? हाँ सर, वही somebody I reached somebody who had got a very good rank in NEET PG. He was my batch only, so I approached him. I told him I am in this situation, and I really need somebody to be accountable to, just to fall back on when I need somebody for preparation or for advice or anything. So he willingly agreed, fortunately. And then he played a very major role, considering my journey and how I had gone through. Both some things were common with everybody की preparation का जो मेंटल इमोशनल बर्डन आता है, जो प्रेशर आप फील करते हो जब आपको बर्नआउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, all of that. And some of it was very personal to me, like the delays also in the exam. Then some of it was very personal to me कि मम्मी बीमार है या मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है, and a lot of that. So yeah, that did help. Okay, so what do you hope mentees take away from your sessions? Okay, so I have been through this journey. I know कि कैसे कैसे आपको प्रेशर्स फील होते हैं, how does self doubt creep in and all of that. So as a mentor, I would like somebody, like I had somebody for me, I would like to pay back. So I would like to be that person जिसके पास कोई बहुत परेशान आए, भले ही मतलब not some academic issue, but like just troubled कि आज मेरी इंटर्नशिप चल रही थी एंड सम सीनियर स्कोल्डेड देम, और उसकी वजह से या किसी को पीजी या रूममेट से लड़ाई हो रही है और समथिंग, एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस दैट मच, क्योंकि ये सब ना आपके टाइम, पढ़ाई का टाइम काट देता है. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो मेरा रोल एज ए मेंटर, आई वुड फील, वुड बी टू रिड्यूस दैट रिस्पॉन्स टाइम एंड हेल्प देम हैव दैट करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द प्रिपरेशन. हर कोई, आई थिंक एवरीबडी हु हैज डन एमबीबीएस इज मैच्योर इनफ कि उन्हें पता हो कि राइट चीज क्या है करने के लिए, बट फिर भी लोगों को टाइम लग जाता है ना उधर तक पहुंचने के लिए. आई वांट टू शॉर्टन दैट टाइम फॉर देम, कि अगर आप किसी बात से परेशान थे और आप कल सुबह से सोचते कि चलो आज रात को सो जाता हूँ और कल सुबह से पढ़ूंगा, तो मेरा वो काम है कि आप मुझसे एक बार 15 मिनट के लिए बात कर लीजिए.
तो आप फिर बैठ जाएंगे उस 15 मिनट के बाद पढ़ने, तो आपका वो जो पूरे 6-8 घंटे जो आपने वेस्ट कर दिए उस चीज में, वो मैं बचा लूं। या फिर आपकी कोई कोई गलती हो रही है, आप नहीं उन गलतियों को ठीक कर पा रहे हैं प्रेपरेशन वाइज एकेडमिकली, की कोई एक टॉपिक है, कोई एक तरह का सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट का कोई सब टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, आपका जीटी का स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि क्या गलती आप कर रहे हो, और फिर उसको इम्प्रूव करना कि कैसे, मतलब द बेस्ट वे आई कैन सजेस्ट, द शॉर्टेस्ट रूट, जो गूगल मैप्स नहीं करते, तो शॉर्टेस्ट रूट देना कि okay, okay, this is the shortest way, this is how you have to do it, and you will be able to do it. And I have been in their shoes, I have gone through that road, so I know उसमें क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या, मतलब जजमेंट नहीं आ सकता मेरे अंदर से कि ये कैसी बात पे परेशान हो रहे हो, या ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, या ऑल ऑफ दैट. So I want to be that person because I had somebody and I want to pay back. That is, I have kept like, and thanks to you, you guys also have it, the option to have free sessions. yeah, कि अगर if somebody is not willing to pay and just need some help, I want to be there for them through this phase because I know how pressurizing, how gruesome this journey is, how grinding it is. तो सबके पास कोई ना कोई होना चाहिए, तो even if they are not willing to pay, at least they have 15 minutes time slot with me and they can discuss things and they can feel good and then sit back and study again. तो तुम्हारे जब तुम मेंटी थी और तुम्हारे मेंटर के तरफ से जो जो हेल्प्स मिली, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन कि हाउ डिड दैट इम्पैक्टेड योर प्रिपरेशन एंड योर माइंडसेट. Okay, so surprisingly, मतलब I was very shocked to know your long term plan, क्योंकि वो और मेरा जो रूटीन था with my mentor was very similar. तो हमारा this was our routine that I used to give GTs at drop year था मेरा, तो I gave GTs every week. So weekly GTs when I gave, I used to connect with him. I did, by text. I would tell him कि मेरा GT का score ये है, percentile ये है, and I would analyze my GT accordingly and then share with him कि ऐसा हो रहा है, or I feel these are my mistakes, this is where I am not improving, this was the topic which I made mistake last time also, this time also, and this is keeping on going on for like past 4 GTs, how do I change it? And then we used to discuss that strategy. Then once in a month we used to connect by a call. तो फिर वंस इन अ मंथ और 2-3 जीटी के बाद व्हेन यू फील कि ये स्ट्रैटेजी में आप कुछ चेंज की जरूरत है, ग्रोथ नहीं हो रही है, जीटी स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तो आई नीड दैट change in strategy. Then we used to sit and discuss properly a strategy. Then I used to share my schedules, क्या कैसे पढ़ रही हूँ, क्या रूटीन है मेरा डेली, मतलब डेली रूटीन, वीकली रूटीन, schedule till the exam. So ये सब हमने पहले से फिगर आउट करके फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस और एनालिसिस के हिसाब से चेंजेस कर करके वी मेड अ स्ट्रैटेजी. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा कोई एडवाइस जो तुम्हारे मेंटोर ने तुमको दिया हो और पूरा माइंड में स्टक हो गया हो, जिसको लेके तुम पूरे प्रिपरेशन में बिल्कुल फॉलो करती रही हो? वन वेरी पिवटल लाइफ चेंजिंग एडवाइस दैट हैपेंड वाज एग्जाम के, लाइक माय मदर पास्ड अवे लाइक 40 days बिफोर द एग्जाम. तो जब वो कॉमन एक वो निकलते हैं ना, कॉमन मॉक्स निकलते हैं, फ्री मॉक्स बाय एवरी प्लेटफॉर्म, like a month to 15 days before the exam. So I gave one of those mocks 15 days before the exam, and my rank was same as last year's rank. Okay. So the self doubt came in like anything. 15 दिन बचे थे, same rank थी, तो I felt a lot of things कि मतलब I wasted a year and all of that. आप feel करने लगते हो, self doubt आ जाता है बहुत ज्यादा, और उस टाइम पे पढ़ना was also a very big challenge for me. रैंक, मार्क्स, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. उस टाइम पे बैठ के पढ़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज लगता था, और वो ही ओवरकम करना बहुत बड़ी चीज लगती थी. सो देन आई टॉक टू हिम, देन ही आस्क्ड मी कि क्वेश्चन पेपर कैसे दिया था जब तुम पेपर दे रही थी, तो क्या कैसे आंसर्स किए, या वो, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू व्हाट वाज हैपनिंग. ये तो तुमने ना पेपर सही से नहीं दिया है. इट इज 15 days बिफोर द एग्जाम, ठीक है. तो अब 15 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि मैंने कुछ बहुत पढ़ लिया होगा. वैसे भी मेरी बहुत पढ़ने वाली हालत तो थी नहीं, पर मैंने बहुत पढ़ लिया होगा या कुछ बहुत ही मेहनत मैंने कर ली थी. ही जस्ट टोल्ड मी दैट एंड देन वी मेड अ स्ट्रैटेजी व्हिच वाज वेरी डिफरेंट टू अ लॉट ऑफ बेसिक स्ट्रैटेजी दैट वी हैड मेड अर्लियर, क्योंकि सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो गई थी. तो हमने फिर उस हिसाब से काम किया एंड माई रैंक केम आउट टू बी लाइक दैट वाज 15,000 15 दिन पहले. और लोग तो मतलब
मतलब लगभग सेम ही बैठते हैं, तो मतलब आई वाज वेरी लाइक कि अब क्या होगा, बट इन द एग्जाम आई गॉट 5,000। सो वो जो 15 दिन की स्ट्रैटेजी थी ना, इट हैड a lot of mindset changing more, because इस टाइम पे आप मेहनत क्या कर लोगे ना। वो तो ये है। कोई ऐसा टाइम भाई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि मैंने कुछ नया पढ़ लिया या कोई कंसेप्ट क्लियर। इस टाइम पे तो आप कंसेप्ट भी क्लियर नहीं कर सकते, 15 दिन बचे हैं, आप कोई इसमें नई तो चीज थोड़ी है। इसमें तो इसमें आप फुल सिर्फ फुल डिमोटिवेटेड मोटिवेटेड हो जाते हैं, अरे यार 15 दिन में अब क्या ही कर लूंगा मैं। बट हाँ स्टिल हाँ वही वही योर मेंटर हाँ, हेल्प्ड यू अ लॉट। मोटिवेशन इज वन पार्ट, देन स्ट्रैटेजी चेंजिंग वाज डिफरेंट पार्ट, क्योंकि मतलब कुछ तो काम नहीं कर रहा था ना, पढ़ा तो मैंने था ही। और फिर एक ये भी बात थी कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ और बहुत बड़ा कुछ कर दूं कि मेरी रैंक एकदम मतलब कुछ हो ही जाए। बट बहुत छोटा सा चेंज था, एंड वी डिड दैट एंड एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर मी। ओके। सो मत आई गॉट द ब्रांच, मतलब जो मुझे चाहिए थी। अगर फर्स्ट रैंक भी आती तो ये भी यही लेनी थी, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रैंक आई, बट या मतलब इतनी आ गई कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिड हैविंग ए मेंटर इन्फ्लुएंस योर डिसीजन टू या बिकम द या मेंटर? या डेफिनेटली दैट आई हैव सीन थ्रू आउट माई लाइफ। अगर आप किसी भी चीज को अप्रोच कर रहे हो, वेदर इट्स अ स्पोर्ट, वेदर इट्स एन आर्ट, वेदर इट्स academics, whether it's cooking also, I feel having somebody who has experience in it and is good in it will always help you. It will make your journey smoother. आपकी गलतियां जल्दी पकड़ी जाएंगी, जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना। आपको टाइम कम लगेगा चीज सीखने से। अगर कोई इंसान है जो उसमें एक्सपर्ट है, तो वो आपको बेटर सिखा भी देगा। जो चीज आप बहुत सारी गलतियां करने के बाद एक कंक्लूजन पे आओगे, वो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी टॉपिक में ना, जैसे हमारी प्रिपरेशन में थ्योरी एक बार पढ़ो और क्वेश्चंस करते रहो इज द ओनली वे। बट अगर आपको कोई ये नहीं बताएगा ना, तो आप बार बार थ्योरी पढ़ के एक्सपेक्ट करोगे कि आपका वो टॉपिक सही हो जाए या उसके क्वेश्चन सही हो जाए। हम्म। और कोई एक बार कह दे कि नहीं नहीं, इसके नहीं करने। सिमिलरली गोल्स फॉर बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। आप उतने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग क्यू बैंक या सब कुछ सॉल्व पूरा पूरा करने लगते हैं ना, दैट इज नॉट नीडेड। यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ानी है, कहाँ पे आपको थ्योरी बढ़ानी है ना। तो वो चीजें आपको कोई मेंटोर बहुत इजीली बता देगा। आपको उसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे, आप बहुत सारी गलतियां नहीं करोगे, किसी और की गलतियों से आप सीख लोगे क्योंकि वो सीख चुका है। हाँ, डेफिनेटली। और सो फिर तीसरा होता है कि जो मेंटल इमोशनल एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग विच अगेन माई मेंटर टोल्ड मी, कि अगर तुम एक क्वेश्चन में ये सोचने लगी हो कि अरे, मतलब ये पेपर में बहुत ज्यादा होता है कि आप एक क्वेश्चन पे हो और आप दो ऑप्शंस में अटके हुए हो, ठीक है, 50-50 पे, दो आपने रूल आउट कर लिए हैं और वहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि अरे क्या है। और उस टाइम पे अगर आपका माइंड वहां चला गया कि अरे ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस विल डिसाइड माई रैंक, या यू गो इनटू थिंकिंग कि अरे मुझे ये नहीं आता, एंड यू गो विद दैट माइंडसेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो आप उसकी रीडिंग मिस्टेक कर दोगे या आप उसके पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ोगे, आप भड़बड़ में कुछ गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें ना मेंटोरशिप के साथ और उसके साथ बहुत इजी हो जाती है, किसी की गाइडेंस के साथ। और जब आपको पता होता है कि देयर इज समबडी जिसके पास आप जा सकते हो, तो वो भी आपको बहुत ग्राउंडिंग देता है प्रिपरेशन में, कि आप एक एक ऑथराइज्ड पर्सन है, एक एक्सपीरियंस इंसान है जिसपे आप ट्रस्ट करते हो। तो वो जो बोलेगा ना, उस पर भी आप ट्रस्ट करोगे। कभी कभी खुद पे भरोसा नहीं होता, पर किसी और को आप पे भरोसा हो कि नहीं यार तू कर लेगी, कोई यही बोल देना आपको, उतने में भी बहुत हो जाता है। तो ये तो दैट इज व्हाट अ मेंटोर कैन डू in your life. And I feel Salaka shots, I did not know that you guys were already there, क्योंकि मैं तो prepare कर रही थी तब, I was not into social media and everything. But this was a gap which I felt in my preparation, मतलब previous year's preparation. That is why I made sure I had somebody. So I feel making it professional also helps. क्योंकि आप सीनियर्स के पास या दोस्तों के पास जाते हो ना, तो सामने वाला सुन रहा है, पर सामने वाले की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई मेरे पास आता है, आई हैव हैड लॉट ऑफ जूनियर्स फ्रॉम LH ओनली एंड अदर पीपल ऑल्सो एट सलाका शॉट्स। यहाँ पे क्या है, आई एम अकाउंटेबल टू द अदर पर्सन। जैसे यूजुअली क्या होता है, जो पूछने जा रहा होता है ना, वो ही अकाउंटेबल होते हैं। आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही टेक्स्ट कर रहे हो। यहाँ पे एज अ मेंटोर आई एम ऑल्सो अकाउंटेबल टू यू गाइज ना। अगर मैं आपके यहाँ सलाहकार हूँ, तो आई हैव टू डिलीवर समथिंग एज अ या मेंटोर। तो मेरी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, उसमें एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता so it's a good thing है। that you joined us, and hope journey will be very much fun. So let's talk about your drop year. ये drop year का जो pressure रहता है ना, और apart from that you took a drop year and तुम एक
Lady Harding Medical College से you did your UG, and I think that's must have you must have that pressure on your shoulder that you belong to such top college and you are taking a drop. So how did you manage that? Okay, so I think that was one of the hardest decisions I took, and but it was a right decision now, I feel. एक तो ये चीज that nobody else, a lot of people will come कि take other options like do UPSC CMS or take a branch which you are getting at this rank or whatever, मतलब not with an ill intention. They also want your best, but उन्हें ये लगता होगा कि ड्रॉप ईयर में नहीं कर पाते हैं लोग, उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे. बट एट द एंड मेरी जर्नी है, मैं क्या ब्रांच चूज कर रही हूँ, मुझे उसके साथ थ्रू आउट लाइफ रहना है. एंड आई ऑलवेज हैव दिस वेरी बेसिक रूल कि अगर समथिंग इज हैपनिंग वंस इन अ ईयर एंड समथिंग इज हैपनिंग वंस इन लाइफ टाइम, तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज तो हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई ना. डेफिनेटली. ठीक है, तो चूजिंग अ ब्रांच इज वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन, टेकिंग अ ड्रॉप इज वंस इन अ ईयर डिसीजन. ठीक है, आप एक ड्रॉप लोगे वो 1 साल की बात है, वो आपकी इतनी बड़ी लाइफ में वो 1 साल कहीं चला जाएगा. आज से 10 साल पहले वाला 1 साल आपको याद भी नहीं है. जो पूरी जर्नी है, मतलब उसमें अगर आई वुड हैव चोजन सम ब्रांच आई एम नॉट पैशनेट अबाउट, तो फिर मैं इतनी खुश नहीं होती, मैं इतना इनपुट नहीं दे रही होती, मैं इतना एफर्ट नहीं मार रही होती, मुझे वो सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट माई लाइफ नहीं मिलता. एंड दैट इज स्टिल फाइन. अगर मैं रिग्रेट करने लगती कि अरे मैंने ये क्यों किया, 1 साल का ड्रॉप ही ले लेती और समथिंग, आई थिंक दैट इज वेरी मेंटली इमोशनली वो बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाता है किसी के लिए. तो वाज अ वेल एनालाइज्ड डिसीजन ऑल्सो. मैंने बैठ के सोचा, आई थिंक जब आप ड्रॉप लेते हो तो आपको सोचना चाहिए कि इस साल में जो भी कुछ हुआ, क्या ऐसा कुछ और है जो नेक्स्ट साल में हो सकता है, अगले साल में मैं कर सकती हूँ जिससे मैं इम्प्रूव करूँ. क्योंकि हर किसी की एक मतलब कैपिंग कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर वो नहीं जा सकते. तो अगर आपने अपना वो वाला एफर्ट दे दिया है, दैट इज फाइन, फिर एक्सेप्टेड. बट इफ यू हैवंट, देन मेक श्योर कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप कैसे करोगे. जैसे मेरा जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो दिस इज व्हाट आई डिड. आई थॉट, आई मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि क्या क्या गलतियां मैंने की, क्या क्या सिचुएशंस हुई जिनकी वजह से मेरी प्रेपरेशन नहीं हो पाई. अगेन मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ उसका बहुत बड़ा पार्ट था, नॉट हैविंग अ मेंटर उसका बहुत बड़ा पार्ट था, और बहुत चीजें उसका बहुत बड़ा पार्ट था. एंड आई न्यू कि माय मदर्स इलनेस इज अ टर्मिनल इलनेस, तो वो अभी ऐसी है, इन फ्यूचर एनीथिंग कैन हैपन, इट इज वेरी अनसर्टन. सो आई विल हैव टू डील विद दैट इन अनसर्टेनिटी इमोशनली मेंटली, अगर मैं ड्रॉप लेने का सोच रही हूँ तो, है ना. क्योंकि प्रिपरेशन तो फिर आप नहीं छोड़ पाओगे, सिचुएशन तो कुछ भी हो. तो फिर मैंने पूरा पहला साल एनालाइज किया, उसमें गलतियां निकाली, फिर उन गलतियों के हिसाब से पूरा नेक्स्ट ईयर प्लान किया अपना कि मैं कैसे कैसे. इट इंक्लूडेड टेकिंग अ ब्रेक, मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया, डूइंग JR-शिप फॉर 1 मंथ. बहुत टाइम से आई वाज डिटैच फ्रॉम हॉस्पिटल, और हमारे लिए तो वो बहुत ही अच्छी जगह होती है, बहुत लोगों के लिए हॉस्पिटल बहुत बुरी जगह होती है. हमें तो मुझे इमरजेंसी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है. तो दैट इज वन थिंग. तो आई डिड दैट, एंड देन आई सैट बैक आफ्टर टेकिंग अ गुड लाइक हेल्दी ब्रेक. I spent time, a lot of time with my mother, did things I wanted to do with her. और फिर जब मैं पढ़ने बैठ गई थी, then I planned my studies accordingly, whole preparation accordingly with my mentor and everything. So yeah, my family also, I told them also everything. I told them why I took the decision, how I took it. Because with family, I think very close people, you need to make them understand कि वो क्यों important है वो चीज आपके लिए. पर तो ऐसा फिर हमेशा ऐसा होता है ना कि हम हमेशा ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारे जो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी कॉलेज ले लिया वो क्या सोचेंगे. हम इस चक्कर में फंस जाते हैं ना, इस पूरा गोल गोल चक्कर की लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा. इसमें मतलब आई हैव वेरी बेसिक, मतलब 2 concepts which I work on. One is कि my life I will have to live. अगर मुझे कोई आके बोल रहा है कि तुम तुम ये ले लो, ये अच्छा है, एंड आई डोंट फील दैट, तो फिर कोई मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी ना. जैसे आई अग्री, हो सकता है किसी के लिए जिस सिचुएशन में मैं थी, उन्हें पता होता कि वो 1 साल और नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए वो डिसीजन बेटर होता. बट वो उन्हें पता होना चाहिए कि नो योर सेल्फ, एनालाइज थिंग्स. कभी भी इमोशनली कोई डिसीजन लेने का कोई सेंस नहीं है कि अरे नहीं मैं तो करके दिखाऊंगी वाला नहीं था मेरा. I took a break. I did understand what went wrong. I did make sure for the whole year next year. ऐसा नहीं कि जब सोचा था सिर्फ तब सोचा कि अरे नहीं 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 करना है. हर टाइम जब I was falling back,
I did that. That is why when my mother passed away, that after that also, after 2-3 days, I sat back to study. It was hard, but I did it because I made that decision for myself. So one thing I believe is कि अपना decision, whatever I have taken, I will prove it to be right. अब आज आके मुझसे कोई नहीं कह सकता कि तुमने गलत लिया था ड्रॉप लेके. हाँ, ये ठीक बात है. है. And the other thing is कि I feel people who will actually care about you will always understand what you want. For example, my family, my sister and my father took maximum care of my mother, and my mother for that matter also, she made sure कि उनकी तबीयत भी खराब है, वो hospitalized भी है, कुछ भी है तो भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने में लगाने पड़ते हैं और मैंने तो ड्रॉप लिया है और मुझे जो रैंक चाहिए, जो क्लास मतलब जो चीज चाहिए वो चाहिए ही है वापस. तो देन शी मेड श्योर कि नहीं अब तुमने आधा घंटा यहाँ पे वेस्ट कर दिया है मेरे साथ, हो गई तुम्हारी मस्ती, तुमने एक गेम लूडो का खेल लिया, अब तुम जाओ पढ़ो. तो वो स्ट्रेंथ, वही मैं बोल रही थी कि वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है ना, वो ही आपकी और आपके अपनों की लाइफ बना देती है. सो मतलब लेकिन इस टाइम पीरियड में ऐसा बहुत बार ऐसा होता है ना कि हाँ, वो लोग आते हैं जो आपको बोलेंगे नहीं कर पाओगी, क्यों कर रही हो, शादी कर लो, ये ले लो, वो ले लो, क्यों इतनी मेहनत करनी है. बहुत आई फील अगर अवॉइड दोज पीपल. अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ भी रहे हैं तो फॉर द प्रिपरेशन पीरियड, हो सकता है उनका इंटेंशन सही हो बट प्रिपरेशन के लिए वो ठीक नहीं है. तो अगर वो रैंडम लोग हैं ऐसे ही, तो फोन उठाना बंद कर दो, मैसेज देखना बंद कर दो, सोशल मीडिया से तो मैं वैसे ही आई वाज नॉट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ठीक है. बट अगर नहीं है तो मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम देम रिस्पेक्टफुली कि तो, हाँ ठीक है. लेकिन उस समय एक फोकस और बना के रखना और मोटिवेटेड रहना, तो मतलब तुमने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई होंगे जो मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले, जिससे उनको भी इस चीज में हेल्प हो पाए, उनके साथ कुछ शेयर करना चाहोगी? मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट mistake I made in my previous year was not having the mental strength. I feel मतलब बहुत चीजें हो रही थी in my life and I knew I can't change the situation in my life. I will have to grow accordingly. उस सिचुएशन से डील बेटर करना पड़ेगा मुझे और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. सो देन आई मेड श्योर कि मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या करूँ. तो वन इज हैविंग अ रूटीन. अगर आपका डिसिप्लिन सही है तो आप वैसे भी बाकी मतलब बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, अपनी गोल के बहुत पास पहुंच जाओगे. वन इज दैट. टू इज आई मेड श्योर आई राइट माई डायरी एवरी डे. आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर पास्ट 4 years. सो आई जर्नल रेगुलरली. Then I read the Bhagavad Gita in the break that I told you, take healthy breaks. Yeah. So take breaks, but वो ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि वो आपको रेस्ट भी दे, आपके ब्रेन को. आपकी फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के बीच का ब्रेक है तो आईज को भी रेस्ट मिले, है ना, क्योंकि आप इतना लंबा नहीं पढ़ पाओगे अगर आपकी आंखें थक गई हैं, नींद आने लगेगी, थक जाओगे, सर दुखने लगेगा. सो ऐसा ब्रेक लो जिसमें आपको रेस्ट मिले और आपका माइंड इतना रिफ्रेश हो जाए कि आप दोबारा जाओ तो फिर आप में उतनी एनर्जी हो कि आप फिर से वैसे पढ़ रहे हो जैसे आप दिन की शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हो. तो उसके लिए स्पिरिचुअली आई एम वेरी इंक्लाइंड. सो आई रेड द भगवत गीता. आई रीड 1 श्लोक एवरी डे इवन नाउ. तो पूरी मैंने उस ब्रेक में खत्म कर ली थी. फिर 1 श्लोक एवरी डे. देन आई यूज्ड टू अफर्म माई सेल्फ. दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच माई मेंटर ऑल्सो टोल्ड मी. वो लास्ट के 15 दिन शीशे के सामने खड़ी हो और बोलो कि तुम्हारे 160+ करेक्ट होंगे. एंड 157 करेक्ट हुए थे मेरे पेपर में. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये लोगों को लगता है अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा. बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है. स्पेशली जब तुम पेपर में बैठे होते हो और 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होते हैं. सबसे ज्यादा फर्क इसी बात से पड़ता है. उस टाइम पे नॉलेज और बाकी सब चीजें मैटर नहीं करती, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल और आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, बस और कुछ नहीं मैटर करता. तो ये चीजें थी. आई यूज टू मेडिटेट. मेरे ब्रेक्स में आई यूज टू मेडिटेट. एंड आई ऑलवेज से हैव मेंटर्स इन एवरी स्ट्रीम. तो मैं खुद की मोटिवेशन के लिए भी आई फॉलो 2 people वेरी रिलीजियसली. वन इज विराट कोहली एंड द अदर पर्सन इज नोवाक जोकोविक, जो टेनिस प्लेयर जो है. तो इन दोनों की पूरी लाइफ जर्नी आई नो एंड आई नो एवरीथिंग. सो और वो दोनों भी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशंस को बहुत प्रमोट करते हैं. तो आई नो कि दैट इज हाउ आई डेवलप्ड माय मेंटल स्ट्रेंथ. अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक स्ट्रेटेजाइजिंग, मतलब जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करनी पड़ती है आपको और एनालिसिस करना पड़ता है एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए, उसके अलावा. Okay, so one big thing, like just before the exam, your mother passed away, and it was a big loss for you. And so, what strength makes you continue your preparation during this time? Okay, so one is that is what she wanted. मतलब हमेशा से this is what my mother wanted. So, and my mother and my family and everybody had made a lot of sacrifices and did a lot of hard work to get me where I am today.
I could not let all of that go in vain. एक साल से मेरी my mother made so many sacrifices. My father and my sister made sure I have all the time in the world to study. So वो it did help me, and I did not want to did not wanted to waste all of that, disrespect all of that. इसलिए I did start studying after 2-3 days after my mother's passing away. And I had a strategy. मैंने space of study को हमेशा segregate कर दिया था मैंने घर से. तो पहले I was in a library. Then at home when my mother passed away, I did not want to go to the library. So I chose another floor घर में जहाँ पे सब नहीं रहते हैं, दूसरे फ्लोर पे. और मम्मा की एक फोटो के साथ I used to sit and study. And the only thing that kept me going was that again those Virat Kohli also lost his father very, very early. So when you look at experienced people from that field also, so I searched for people who had lost their parents and were doing good in life. I'll give you some examples. Bhuvan Bam lost both his parents in COVID. But he did well after that also. Virat Kohli went for a match when his father's dead body was there at his home. So I looked up to such people. I did some changes in my वो last month का strategy तो मेरा फिर काफी बदल गया था क्योंकि इतना tough time था. जैसे एक होता है आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है क्वेश्चंस में. तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप उस पर कुछ तो क्लिक करोगे ही ना, मतलब जस्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो क्योंकि आई वाज इन दैट पीरियड ऑफ इमोशनल टर्मोइल एंड मेंटल फॉग, आई फोकस्ड मोर ऑन क्वेश्चंस rather than theory या any short notes or something, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था. तो फिर मैं अपना दिन का मेजर पार्ट मैंने स्ट्रैटेजी ऐसे कर दी थी कि मेरा दिमाग कुछ तो काम करे, मतलब मैं कुछ तो कर पाऊँ. ऐसा ना, I did not give my 100% every day, but I made sure I sat down and I studied. I did not study for very long hours, but then I made sure ऐसा एक भी दिन नहीं जाए after passing away कि मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ाई ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ. In fact, the night she passed, उस रात को also because ICU में थे हम and all of that, so I spent a lot of time studying in my in hospitals or ICUs or things like that. She had very frequent SIOs पिछले 6 months में. So क्या करते थे कि I used to make sure कि मेरे जो जितने भी PYQs में सॉल्व करती थी वो मैं ICU में या हॉस्पिटल में या मम्मी के साथ रात को रुक कर ऐसे ही सॉल्व किया है मैंने. थ्योरी दिन में पढ़ ली लाइब्रेरी में और PYQs कर लिए. लोग आ रहे हैं, मम्मा से मिल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में पीपल कम एंड विजिट यू, तो मैं एक कोने में खड़ी हो जाती थी ऐसे रूम के अपना फोन लेकर और फिर ऐसे 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 सॉल्व करती रहती थी PYQs. तो द डे शी पास्ड, उस रात से पहले भी रेडियो मैंने आखिरी बार उसके PYQs सॉल्व किए थे. उस दिन आखिरी बार मैंने रेडियो किया था. उसके बाद मैंने एग्जाम तक तो नहीं कर पाई थी, 12 बजे टाइम नहीं मिला था. तो मतलब इतने मतलब डिफिकल्ट टाइम में व्हाट हेल्प्ड यू टू स्टे ग्राउंडेड एंड मोर फोकस्ड? One is I think the mindset, and that has a lot of play of a mentor, the family I have. And then the other thing was discipline over motivation. कि मतलब रोज उठ के जाना ही है पढ़ने, आपको कैसा भी फील हो रहा है आप ब्रेक ले लो. एंड अगेन ब्रेक्स हेल्दी होने चाहिए. ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा ब्रेक लेते हो फिर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया और फिर आप स्क्रॉल ही करते जा रहे हो. आपने अपनी आंखों को भी मतलब, क्योंकि अभी तक बाय दिस एज आई फील मेडिकोस की आंखें तो बहुत काम कर चुकी होती हैं. दे नीड रेस्ट. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप फोन के सामने बैठे हो और पहले भी आप बुक्स पढ़ रहे थे या आजकल एवरीबडी इज यूजिंग टैब्स एंड फोन्स, सो यू हैव सो मच स्क्रीन टाइम ऑलरेडी एंड देन यू स्पेंडिंग योर टाइम मोर ऑन स्क्रीन. इट विल ओनली, आई डिडंट रीड आल्सो, आई लव रीडिंग बुक्स, बट मैं पढ़ाई के अलावा इसलिए और रीडिंग नहीं करती थी कि मेरी आंखें दुखने लगेंगी. तो टीवी या स्क्रीन टाइम, आई यूज्ड टू सिट विद माय फैमिली, talk to some friend. Major part, the best break I felt was I would lie down and put on a guided meditation, put eye drops in my eyes and then shut down for 10 minutes. उसके बाद when I used to wake up, I used to be very energized. और तब तक मेरा सारा, अगर I have been dealing with a lot of emotional and mental issue things personally भी, just exam की होती है कि GT का स्कोर अच्छा नहीं हुआ, कुछ याद नहीं हो रहा and all of that, तो is different and all of this also. So that would come out in that meditation. उसके बाद I'll be refreshed or I'll listen to some speech by somebody. I put and the same thing, lie down, put your eye drops, put a mask or close your eyes और वो लगाया और 10 मिनट की एक स्पीच सुन ली, 10 मिनट का एक मेडिटेशन सुन लिया, उसके बाद उठे और फिर पढ़ने बैठे.
तो मैं ऐसा कोई मोमेंट जो तुम्हारी मॉम के साथ हो जो तुमको बहुत मोटिवेट किया हो इस टाइम पीरियड के समय जो ये डिफिकल्ट टाइम था तुम्हारे लिए? Every, like, lot of them, like, I can't tell you repeatedly. जैसे मेरा जो INI में था, this is not, मतलब I was not there. एक तो था, my mother passed away on I think 1st July को she passed away. 19th June को फिब्राइल सीजर्स आए थे मेरी मदर को, और तब झांसी में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, तो हम अंधेरे में छत पे बैठे थे. Whatever electricity we had, I used to charge my tab, or one light in my porch we kept open, one bulb. I sat there and I studied. Tab. And my mother was upstairs on our like balcony, and she was lying on a bed. She had a drip. And then so all of a sudden my sister called me and told me that इनको तो seizures आ रहे हैं. So then we took her to ICU, and there also she told me कि नहीं पढ़ो. And I remember उस ICU के बाहर सीढ़ियाँ थी, मैंने उसके बाहर बैठ के धर्मा या साइकी या कुछ ऐसे सॉल्व किया है. और people used to come, they used to visit, I used to talk to them also, फिर then I used to keep solving also there also. कि नहीं पढ़ना तो है ही, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पढ़ नहीं सकते हो आप. मतलब ऑब्वियसली इस चीज में मैं किसी चीज के नोट्स अगर फोन में भी है तो मैं खोल के नहीं पढ़ सकती, या ऐसे कोई बुक लेके नहीं बैठ सकती थी, बट क्वेश्चन सॉल्विंग मेरी सारी वही हुई है, ऐसे ही हुई है. So that is how, and that is where I got my strength from. मेरे इनिसेट के एग्जाम के पहले my mother was in Delhi, her treatment was from Rajiv Gandhi, and you know कि मेरा एग्जाम है. She was in a very very bad state. She had sayo, continuous vomitings हो रही थी. She did not have the energy to come back from Delhi to Jhansi. On the station she fell down, like fainted, and my father did ask her कि we can stay in Delhi, it is not that important that we have to go back to Jhansi. So she told my father, no, she has an exam on Sunday, and this was Friday. We have to reach there by tomorrow, because Jhansi is not a center, so my father would take me to Gwalior to give an exam. Okay. So then with that fainting, with the Riles tube, with the Euro bag in hand, she on wheelchair, my father and sister took her from Delhi station. They came to Jhansi, and that is why I knew that even if she's passed, I have to study. I have to get through this year itself with the rank and the branch and the college I need. So I will not compromise on any of that, because my family or my mother did not want me to do that. Okay, then did this experience change your perspective on the challenges of life? Yes, I feel my parents, in fact my sister taught me that, this is a journey of life, and you can look at it and be sad about it, or you can look at it like, it's okay, this is difficult. I will see how I can change this challenge into an opportunity, how I can develop myself. I cannot change the situation. I cannot change my life. I will have to change myself according to my life. I will have to develop that strength, that skill set, that attitude, that mindset to go through this situation. And then you realize that, you come out very beautifully. Like, this that analogy that people gave of a caterpillar into a butterfly, that you feel. Because you have faced all of that, you have grown through that challenge. तो कभी कभी challenges ना आपको ये भी बता देते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो या आप कर लोगे ऐसा, until and unless ऐसी situation आ जाए जब आपकी मजबूरी ही हो जाए वैसा करना. तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी, और आप rather than victimizing or getting into a victim, playing your victim card, you say that नहीं, I will grow through it. I will go through it. I will grow through it. So you have been through so much of these type of things, and finally you come out so much stronger. So what's your message to the mentees who are struggling with their own challenges right now? I feel enjoy the challenges, because if somebody has some challenge, if somebody has a dream, challenge तो तब आता है जब आपने कोई गोल रखा है, उसमें आपका एक रोड ब्लॉक आ रहा है. तो अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ और इतनी कैपेसिटी थी कि आपने गोल या एक ड्रीम देखा है, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप वो डिजर्व भी करते हो, और उसके लिए मेहनत करते जाओ, अपना माइंडसेट बिल्ड करते जाओ. फेलियर्स में भी लर्निंग्स लो और बाकी चीजें छोड़ दो. आई गिव सो मेनी एग्जाम्स थ्रू आउट. आईना इतनी बार दिया, नीट भी 2 बार दिया, तो बट आई नेवर थॉट कि नहीं छोड़ो, अब मैं तो इसी पे सेटल कर जाती हूँ, यही मेरे लायक है, या मैं शादी ही कर लेती हूँ, है ना. ऐसा आई तो नेवर थॉट, क्योंकि आई नो व्हाट आई डिजर्व. And I will work hard for it, very hard.
I will do anything I can. So turn, look at your challenges as your biggest opportunities. अभी लोग people might be thinking कि अरे people will be appreciating me कि अरे इसने इतना कुछ कर लिया with such situation. बट जब पूछती अगर मैं किसी से उस समय कि मैं ऐसा करूं क्या, या मैं ऐसा सोच भी रही हूँ, तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु सेड यार इतना डिफिकल्ट है, तू कैसे सोचेगी, तू कैसे करेगी. दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माय मेंटर कि मुझे कभी ये मत बोलना कि अरे इस वाली सिचुएशन में तो नहीं होगा तो चलेगा. मेरे लिए इट वोंट वर्क ना, मेरे लिए नहीं चलेगा. मुझे तो जो चाहिए था वो चाहिए था. तो डोंट limit yourself with the situations you have. Everybody has the capacity to come out of those situations. Don't let people decide for you anything. It is only you who will take the decisions and make them right. And everybody has the capacity to take a decision. When we take a decision, it is a belief. आपको तो पता नहीं आगे क्या होगा, तो फिर उस पे मेहनत करनी है इतनी कि you make that decision right for yourself, for everybody around you. ताकि फिर लोग बाद में आके आपको नहीं बोल सके कि अरे तब तो ऐसे बोल दिया था या तब तो कर लिया था or something. So yeah, and having the right mindset, having that emotional and mental strength is very important. And I don't know why people don't understand it. It is not like everybody is born with that strength. Nobody is born with that strength. None of the players. I was talking about these two people. They if you I listen to these people a lot. But there is no interview of Virat Kohli or Novak Djokovic which I have not heard on YouTube. तो आप इनकी अगर बातें सुनोगे तो उन्होंने भी अपनी जर्नी से सीखा है. फॉर एग्जाम्पल टेनिस में तो बहुत पर्सनल राइवलरी हो जाती है. क्रिकेट इज अ टीम गेम, बट टेनिस तो एक पर्सनल राइवलरी का गेम है ना. तो उसमें तो बहुत लोग आके बहुत बोलते हैं. आपका कॉम्पिटिटर जब आप खेल रहे होगे तब बोलेगा कि नहीं कर पाओगे. वहां आसपास का पूरा स्टेडियम का क्राउड. नोवाक जोकोविच 3 months भी नहीं होंगे व्हेन some crowd at some place tried to bully him. पूरा क्राउड एक स्टेडियम का, वो बंदा अकेला खेल रहा है, पूरा क्राउड उस स्टेडियम का is talking about him, and he played and he won, and in his winning speech he gave it back to that crowd कि देखो आप तो ऐसे बोल रहे थे. So make sure nothing affects you and you'll have to develop it over time. उसके लिए you will need mentorship, good people around you. Choose people you are with also. So yeah, but challenges जीतने के लिए आप अपना स्किल सेट डेवलप करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप में उतनी स्ट्रेंथ डेवलप करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, हर गलती से सीखो, तब हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ल्ड कप्स हुए थे, नवंबर वाले में हार गए थे, वो इन्हीं साइड के पहले हुआ था. और फिर अभी जो जून में हुआ था, 30 जून was the date I think, जब फाइनल हुआ है ना, तब जीत गए थे. सेम ही टीम थी वो, तब रोए भी थे. नवंबर में सब रोए थे, सब दुखी थे, पर किसी ने खेलना तो नहीं छोड़ा था ना. अगले दिन से गए होंगे प्रैक्टिस करने, तभी जीते. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे आउट. फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे और आप ऐसी चीजों के लिए सेटल कर लोगे जो आप डिजर्व नहीं करते. Okay, so nice of you for joining us, and thanks a lot, and congratulations for your secretary seat again, your dream branch and dream college, and hope you're gonna excel in your career and achieve so much of thing. And again we're gonna talk about your new achievements soon. So all the best again, and thanks for joining us. Thank you, sir. Thank you so much. It's a pleasure being a Salahkar at Salah Shots.